Good morning, everyone. What had we discussed in yesterday's class? We were discussing financial management. We had discussed the meaning of financial management. Then we discussed that there are two main components of financial management. One is financial planning and the other is financial decisions. Then we discussed meaning of financial planning. We discussed it is of two types, long-term financial planning and short-term financial planning. In long-term financial planning, we decide the financial objectives, the financial policies, procedures, laying down the guidelines for procurement of funds, utilization of funds, and distribution of profit. Whereas short-term financial planning is mainly concerned with preparation of budgets. On a monthly basis, generally, we prepare budgets for next 1 year. How much revenue are we estimating to receive in which month? And out of it, how much expenses we will be incurring in which all areas, on what all things. That all is covered in short-term financial planning. Then we discussed there are two main objectives of financial planning. What are those two objectives? Drishti? Are you able to hear me, Drishti? Yes, sir. Okay. So what are the two main objectives of financial planning? To ensure that the funds are available whenever they are required, And and to ensure that unnecessary funds are not there, yes, which will which will? reduce the wastage of our efforts and efforts to keep the funds and the resource, which will reduce our efforts to keep the excess funds. That's right. Now we come to importance of financial planning. How does financial planning help? First point is it helps in coordinating business functions. What are various business functions? Production, sales, finance, etc. How does financial planning help in coordinating them? Because first of all, we prepare a sales forecast. How much of the product are we estimating to sell? On the basis of that forecast, we prepare our production forecast. कि जितनी हम सेल कर पाएंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा प्रोड्यूस भी उतना ही करना है. ठीक है. सो सेल्स और प्रोडक्शन फंक्शन लिंक हो गए. Once we decide how much we have to produce, on that basis we will decide how much machinery, how much raw material do we need, how many workers do we need. So our finance function also gets linked because we need to pay for all these, for the machines, for the raw materials. We need to pay the wages or salaries to the workers. So in this way, it helps in coordinating various business functions. Clear? Yes, sir. Second point is links present with future. Planning का main काम ही यही है. To link present with future. So financial planning also links present with future. How? Because in advance we make estimates about how much funds will be required in which all months, and on the basis of that we ensure that available funds are
required funds are available at all the times. There is minimum uncertainty about the availability of funds. Clear? Yes, sir. Third is links investing and financing decisions. Investing decision में हम decide करते हैं हमने कितना amount किस asset में invest करना है या किस project में invest करना है. और financing decision में we decide where from this money will come. So when we are planning about the finances in advance, we are deciding both these things. So through that planning, the investing and financing decisions get linked with each other. Clear? Then makes evaluation of performance. Yes, sir. Good. Makes performance of evaluation easier. हम performance को evaluate किस basis पे करते हैं? हमने कंट्रोलिंग में भी पढ़ा था ना, evaluating the performance. Yes. On the basis of increase in sales or the efforts of the employees. Yes, very good. In terms of standards that we had set कि कितनी सेल इंक्रीज करनी है या कितनी सेल होनी चाहिए, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए. So स्टैंडर्ड्स हम कब सेट करते हैं? फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग में सेट करेंगे. तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं, वी ऑल्सो सेट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, and they help us in evaluating our financial performance. They help us in maintaining financial control with the help of budgets. Clear? Yes, sir. Next is reduces wastage of funds. अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है हम अननेसेसरीली कहीं ऐसी जगह पे पैसे अपने इन्वेस्ट कर दें, फंड्स को ब्लॉक कर दें जहां से हमें रिटर्न कुछ खास नहीं आ रही और लॉस हो जाए, फंड्स हमारे वेस्ट हो जाएं. ठीक है. बट व्हेन वी डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, वी विल इवैल्यूएट साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली what are the investment proposals, how much amount to be invested where, and when we do all this financial planning properly, then wastage of funds will either not be there or it will be minimum. Clear? Yes, sir. Good. Next is helps in avoiding shocks and surprises. What is the difference between shocks and surprises? जब जोर का झटका जोर से लगे उसे कहते हैं शॉक, और वही अगर धीरे से लगे तो उसे कहते हैं सरप्राइज. तो इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है मेनली. शॉक्स की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, सरप्राइजेस की थोड़ी कम होती है. ठीक है. अब फाइनेंशियल प्लानिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस से कैसे हमें बचाती है? अगर आप सपोज ड्राइव कर रहे हो, आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो रोड पे और आप आगे देख के नहीं चल रहे ठीक से, रोड पे कोई गड्ढा आ रहा है, कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो उस तरफ, तो क्या होगा? कभी गड्ढा आएगा, कभी स्पीड ब्रेकर, कभी कोई पत्थर आ गया, कभी कुछ अनइवन जगह आ गई, तो थोड़ी थोड़ी गाड़ी आपकी इम्बैलेंस होगी. सरप्राइजेस, यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज आपने पहले नहीं देखा. और अगर कुछ बड़ा, थोड़ा बड़ा गड्ढा या थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर या पत्थर आ गया तो वो आपको शॉक भी मिल सकता है, ज्यादा झटका मिल जाए एकदम से. बट when you pay attention, when you look carefully on the road ahead while driving, then you can save yourself from these shocks and surprises by changing the speed of your vehicle accordingly, by changing the direction of your vehicle accordingly in advance. Isn't it? Yes, sir. So similarly, when we do not do any financial planning, then all of a sudden we may face a shortage of funds और हो सकता है हमारा काम रुक जाए. Or
all of a sudden we may have huge funds and we don't even know what to do with them. They will go waste. But when we do proper financial planning in advance, we can avoid such financial shocks and surprises. पहले से हमें आइडिया लग जाएगा कब फंड्स शॉर्ट होने वाले हैं, हम अरेंज कर लेंगे एडवांस में. हमें आइडिया लग जाएगा कब हमारे पास एक्सेस फंड्स होने वाले हैं, हम पहले से प्लान कर लेंगे उन्हें कहां, कब और कहां इन्वेस्ट करना है. देन नेक्स्ट इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मींस अकाउंटेंसी में आपको पढ़ा होगा ना लिक्विड रेशियो. यस, लिक्विड एसेट्स पढ़े होंगे आपने अकाउंटेंसी में, विच आर इन कैश फॉर्म और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश फॉर्म. ठीक है, तो यहां पे भी वही मतलब है. लिक्विडिटी क्यों चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? To purchase and sell. To purchase raw material, to pay wages, salaries, to meet day-to-day expenses, we need some funds in cash form. When we say cash, bank balance is also included. So, अगर कभी लिक्विडिटी की शॉर्ट हो सकता है, आपके पास फंड्स बहुत हो, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी बड़ी अच्छी है कंपनी की, लेकिन फंड्स की शॉर्टेज हो गई. हो सकता है ऐसा कि अच्छे प्रॉफिट है, अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन है, फिर भी फंड्स की कमी. हो सकता है ऐसा? सर पता नहीं, हो वैसे सकता तो है. कैसे हो सकता है? सपोज आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. रेवेन्यू इज व्हाट? सेल्स. सेल्स आपकी 90% सेल्स क्रेडिट पे है. क्रेडिट पे है तो सपोज 10 लाख की सेल है और 7 लाख के आपके सारे एक्सपेंस हैं, तो 3 लाख का प्रॉफिट है. लेकिन आपके पास फंड्स में 30,000 रुपीज भी नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी 90% सेल्स जो हैं वो क्रेडिट पे हैं, अभी पैसे आए नहीं कस्टमर से. तो हो सकता है, चारों चीजें हो सकती हैं. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी हो. प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन लो हो, लिक्विडिटी भी लो हो. फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन पुअर हो. फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पुअर हो लेकिन लिक्विडिटी अच्छी हो. तो ये चारों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. तो लिक्विडिटी जरूरी है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस. ठीक है, अगर लिक्विडिटी लो हो गई तो हम डे टू डे एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाएंगे एंड अगेन हमारा काम रुक सकता है उसकी वजह से. सो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग attempts to achieve a balance between the inflow and outflow of funds. किस मंथ में कितना हमारे पास कैश इनफ्लो आना है, कितना कैश आउटफ्लो जाना है, वो सब हम पहले से एस्टिमेट करके चलते हैं, जिससे कि थ्रू आउट द ईयर adequate liquidity is maintained and we do not face any shortage at any time. Clear? Yes sir. Okay, very good. Then second component of financial management is financial decisions. Financial decisions तीन तरह के होते हैं. तीन मेन तरह के डिसीजंस लेने होते हैं हमें फाइनेंस से रिलेटेड. फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. मींस पैसे कहां से कितने आएंगे जो हमें चाहिए, कहां से कितने पैसे हम अरेंज करेंगे. Various sources of long-term and short-term finance are identified, analyzed, and the most appropriate sources are chosen on the basis of cost and risk involved. हर सोर्स में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा. हो सकता है जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम अ बैंक है. हो सकता है किसी में कॉस्ट ज्यादा और रिस्क कम हो, दूसरे में कॉस्ट कम और रिस्क ज्यादा हो. तो हमें बैलेंस बनाना है सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट और रिस्क को. वी विल चूज एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. क्लियर?
सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। ये फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ। फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपकी एक बार हो गई ब्रॉड टर्म्स में, ठीक है, कि हमें उसमें भी ये सब चीजें आती हैं, लेकिन वो हो गई बहुत ब्रॉड टर्म्स में कि हम कहां से कितने पैसे अरेंज करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, ब्रॉड क्राइटेरिया हमने ले डाउन कर लिया। लेकिन एक्चुअली जब पैसे अरेंज करने हैं उस टाइम पे उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए और प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना कि कहां से कितना हम फाइनेंस रेज करेंगे, एनालाइज करना कौन सी सोर्स में रिस्क ज्यादा है, किस में कॉस्ट ज्यादा है, और इन सब बेसिस पे फिर डिसाइड करना कहां कहां से कितना पैसे हमने अरेंज करने हैं। दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। क्लियर? ओके सर, यस सर। इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग है प्लानिंग और इसमें, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का भी पार्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन, और उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है तब भी डे टू डे बेसिस पर ये चलता रहता है, ठीक है। तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है इसमें, बट सिंस इट इज देयर इन दी एनसीईआरटी सो वी हैव टू डू देम सेपरेटली। जितने भी ये डिसीजन है देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इंक्लूड हो जाते हैं कुछ हद तक, ठीक है। यस देवेश। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन है बेटा कि आपको सपोज 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आपकी कंपनी में। अब ये 10 लाख रुपए आएंगे कहां से? आपके पास इक्विटी शेयर्स की ऑप्शन हो सकती है कि शेयर इशू कर दो, आपके पास प्रेफरेंस शेयर की ऑप्शन हो सकती है, आपके पास डिबेंचर्स इशू करने की ऑप्शन है, यू हैव एन ऑप्शन टू टेक लोन फ्रॉम सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम सम बैंक। तो इनमें से सब सोर्सेस के कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट रिस्क, ये सब आप इवेल्युएट करोगे और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि 10 लाख रुपए जो मुझे अरेंज करने हैं वो इनमें से किस में से किए जाएं। हो सकता है आप डिसाइड करो कि पूरे 10 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं, या पूरा 10 लाख रुपए लोन ले लेते हैं, या हो सकता है आप डिसाइड करो कि इसमें से 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है, 3 लाख के डिवेंचर्स इशू कर देते हैं और बाकी 3 लाख का लोन ले लेते हैं। तो ये सब डिसाइड करना, दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो पैसे हमने अरेंज किए हैं, जो हमारे पास फंड्स हैं, उन्हें यूज किस तरह से करना है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले होता है, फाइनेंसिंग बाद में, क्योंकि पहले हम डिसाइड करते हैं हमें पैसे चाहिए कितने। वो कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, कि हमें कौन कौन से एसेट खरीदने हैं, उनमें कितना कितना अमाउंट स्पेंड होगा, ठीक है। सो वेरियस एसेट रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर एस्टिमेटेड and analyzed on the basis of cost benefit analysis. सपोज आपको एक फोटोकॉपी मशीन खरीदनी है अपनी कंपनी के लिए। अब फोटोकॉपी मशीन्स, पहले तो आप ये देखोगे कि क्या हमें इतनी फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसके लिए अपनी एक मशीन खरीदें, और विल इट बी चीपर टू कीप गेटिंग फोटोकॉपीज डन फ्रॉम आउटसाइड। इफ देयर इज अ नीड कि हाँ इतनी फोटोकॉपिंग की जरूरत होती है कि अपनी मशीन होने की जरूरत है, वो हमें इकोनॉमिकल पड़ेगी, ओके, देन यू हैव वेरियस ऑप्शंस। बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे मॉडल आते हैं फोटोकॉपी मशीन्स के, विच वन शुड वी बाय। तो जिससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हो ऐसे कुछ मॉडल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सबका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, इनिशियल कॉस्ट भी और सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, एटसेट्रा। और बेनिफिट एनालाइज मेजर करेंगे सब में। बेनिफिट किस टर्म्स में, कि हमारी कितनी, अगर हम बाहर से फोटोकॉपी कराते हैं तो इस मशीन से फोटोकॉपी करने में कितनी सेविंग हो रही है, वो बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो हर मॉडल के लिए जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, और जिसमें हमें बेनिफिट कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा लगेगा वो वाला मॉडल फिर हम खरीद लेंगे।
दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इस तरह से हम हर एसेट जो हमें खरीदना है उसके लिए डिसाइड करेंगे कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करके, एज टू विच एसेट्स आर टू बी परचेज्ड, in which projects funds are to be invested and how much money is to be invested in them. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. And this is very important for our day-to-day lives also. हमारे इंडियन कल्चर में हम बिलीव करते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अपना सिंपल लाइफस्टाइल रखो, अपनी सोच को ऊंचा रखो। सोच ऊंचा मतलब अच्छी वैल्यूज, अच्छा वैल्यू सिस्टम हो आप में, काइंडनेस हो, आप औरों की हेल्प करते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस हो। दिस इज सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स हैं, जो आप रतन टाटा को देखो, आप अजीम प्रेम जी को देखो, आप नारायण मूर्ति को देखो, वेरी सिंपल पीपल, वेरी सिंपल। मतलब अगर कोई किसी ने इनकी फोटो ना देखी हो या टीवी वगैरह में इनको ना देखा हो तो शायद वो अगर कभी मिल जाए तो वो पहचाने भी नहीं कि अच्छा ये इतने रिच लोग हैं। तो इतना सिंपल उनका लाइफस्टाइल है। इससे रिलेटेड एक आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ स्टोरी, दैट इंसिडेंट दैट आई रेड ऑन सोशल मीडिया। दिलीप कुमार एक बहुत फेमस एक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के। तो उनसे रिलेटेड एक इंसिडेंट पढ़ा मैंने सोशल मीडिया पे कि वंस ही वाज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, एरोप्लेन, तो वहां पर बिकॉज ही वाज एन एक्टर तो कई लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे, उनसे बातचीत करने आ रहे थे। बट द जेंटलमैन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, ही वाज सिंपली बिजी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ना उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा, ना उन्होंने कोई बात की इनसे। तो थोड़ी देर बाद he says that I myself got curious and I introduced myself. He said, मैंने उनसे पूछा आप मुझे पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, हम मिले हैं क्या पहले कहीं? तो इन्होंने कहा नहीं, मिले तो नहीं है, पर जनरली इतने लोग आपने नोटिस किया होगा मुझसे मिलने आ रहे हैं। एक्चुअली आई एम एन एक्टर, हिंदी फिल्म्स में काम करता हूं, तो दिलीप कुमार नाम है मेरा। तो उन्होंने कहा ओके, वेरी नाइस टू मीट यू, हाँ आपका नाम मैंने सुना है, तो प्लेजर टू मीट यू। हेलो किया उन्होंने और उसके बाद फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। तो दिलीप कुमार को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो इन्होंने फिर पूछा कि आप कभी मूवीज वगैरह नहीं देखते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मूवीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता मुझे, तो मूवीज में बहुत कम देखता हूं। बट आई एम श्योर जिस तरह से लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, यू मस्ट बी अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी पॉपुलर वन, सो वेरी ग्लैड टू मीट यू। इसके बाद जब फाइनली उनका प्लेन लैंड हो गया, एयरपोर्ट पे जाते जाते दिलीप कुमार ने कहा यार, मतलब पहला ऐसा इंसान मिला है जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा मैं भी तो पूछ लूं इनसे ये कौन है। तो उन्होंने देखा कि वैसे तो एक सिंपल सा, बड़ा सिंपल क्लोथ आदमी है, सिंपल सी ड्रेस है, ठीक है, और अपना ब्रीफ केस एक उठाया हुआ है। तो इनफैक्ट उन्हें ये हैरानी हो रही थी कि ये अफोर्ड कैसे कर पा रहा है एरोप्लेन में ट्रैवल करना भी, जो उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई एम सॉरी, मैंने तो अपने बारे में बता दिया, मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन? The person replied, well, my name is J.R.D. Tata and I am a businessman. थोड़ा बिजनेस करता हूं मैं। And he was shocked. He said, sir, मुझे आपके ऑटोग्राफ लेने चाहिए, I am sorry, I did not recognize you. So this is the simplicity of great people. Getting it? Yes, sir. तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमें सिंपल लाइफस्टाइल रखना चाहिए। बाय ओनली व्हाट इज नीडेड। कोई भी चीज खरीदने से पहले ये सोचो, अगर आपने एक अच्छी वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल लाइफ लीड करनी है, अगर आपने एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ लीड करनी है और आप चाहते हो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए, इनफैक्ट
आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो, तो कोई भी चीज खरीदने से पहले ये सोचो, डू आई एक्चुअली नीड दिस थिंग? इफ नॉट, डू नॉट बाय दैट थिंग। अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें हम ऐसे खरीद लेते हैं सिर्फ दूसरों की देखा देखी या शौक में, देखी कोई चीज पसंद आ गई चलो ले ली। बेशक हम, और घर में आप देखोगे कई ऐसी चीजें रखी होंगी जो आपने खरीदी कभी लेकिन शायद कभी भी यूज नहीं की, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, या बहुत कम यूज होती है जो चीजें, ऐसी भी कई चीजें होंगी। सो वो जो पैसे आपने खर्च किए वो वेस्टेज है, उसको आप बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो। सो बाय ओनली व्हाट इज नीडेड। फिर जो आपको रिक्वायरमेंट है, नीडेड है, जरूरत है जिसकी, अगर वो भी नहीं खरीदे हम तो वो हो जाती है कंजूसी। तो कंजूसी नहीं करनी है, जिस चीज की जरूरत है वो तो खरीदनी है। लेकिन जब हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो होती है फिजूल खर्ची, ओवर स्पेंडिंग। तो उसको हमने अवॉइड करना है, ठीक है। तो जो चीज जरूरी हो वो खरीदो, जितनी जरूरी हो उतनी खरीदो। जरूरी वाली चीज भी ओवर स्टॉक करके नहीं रखनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतनी खरीदनी चाहिए, ठीक है। एंड एज आई सेड यस्टरडे ऑल्सो, मस्ट सेव। अपनी अर्निंग में से पहले हमेशा सेविंग करो, बाद में जो बच जाए उसे स्पेंड करो। सेविंग करते करते धीरे धीरे आपकी कुछ सालों में इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और उसे इन्वेस्ट करते जाओगे आप, तो रिटर्न भी आएगी। दैट योर फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी स्ट्रांग। अवॉइड लायबिलिटीज एज फार एज पॉसिबल। लायबिलिटीज को अवॉइड करो, लोन को अवॉइड करो, क्रेडिट को अवॉइड करो। बहुत सारे बैंक्स आपके पास फोन करेंगे कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। उनका तो बिजनेस है, लेकिन जहां तक हो सके इन लायबिलिटीज को, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, आप पे कर पाओगे उसकी ईएमआई लोन की या क्रेडिट कार्ड के बिल्स। लेकिन यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर। कल को अगर थोड़ी भी अर्निंग आपकी कम हो गई या बंद हो गई किसी वजह से, जैसा अभी पीछे लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ हुआ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहां से क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करें, कहां से ईएमआई पे करें, और फिर वो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्योंकि फिर जो बैंक्स आपको फोन करते थे बार बार कि क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, फिर उनके फोन दूसरे पर्पस से आएंगे कि आप वापस क्यों नहीं कर रहे। फिर वो थ्रेट्स देंगे, फिर वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट कर देंगे। तो इसलिए जहां तक हो सके लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए। क्लियर? यस सर। सिर्फ एक तरह का लोन है जो मैं कहता हूं कि एडवाइस करता हूं कि ले लेना चाहिए। अगर आपके पास अपना घर है तो हाउसिंग लोन भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास अपना घर ना हो, किराए पे रह रहे हो, तो हाउसिंग लोन वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि किराया तो वैसे भी मंथली जाना है। हाउसिंग लोन की ईएमआई चली जाएगी। लोन उतना लो कि उसकी ईएमआई अराउंड जितना आप रेंट पे कर रहे हो उतने के आसपास ही पड़े, और उस हाउसिंग लोन से आप अपना घर ले लो। उससे फायदा क्या होगा? रेंट तो लाइफ लॉन्ग जाना था। ये हाउसिंग लोन की ईएमआई कुछ साल के बाद बंद हो जाएगी, जब लोन विद इंटरेस्ट रीपे हो जाएगा और घर आपका अपना हो जाएगा। तो ओनली इफ समवन डज नॉट हैव हिज और हर ओन होम, then that person can take housing loan and buy a house of his or her own. All other types of loans, all other types of credit should always be avoided as far as possible. Clear? Yes sir. Third is dividend decision. Once the funds are raised and invested, business starts operating और प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। अब डिसाइड ये करना है कि प्रॉफिट्स का करें क्या। प्रॉफिट्स किसको बिलोंग करते हैं? जो इन्वेस्ट करता है ओनर्स को। यस, ठीक है। लेकिन अगर हम सारा का सारा प्रॉफिट ओनर्स में बांट देंगे, शेयर होल्डर्स में, कंपनी में ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। व्हाट इज इट कॉल्ड?
Dividend. So if we will distribute the entire amount of profit as dividend, then कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे, उसके लिए फिर हमें और कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अगर हम ऑन दी अदर हैंड सारे के सारे पैसे बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दें तो शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न नहीं मिलेगी। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना होता है। सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स वी reinvest in the business in the form of reserves for expanding the business, and the other part of profits we distribute among the shareholders, which is called dividend. तो डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड करना होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना हम रिजर्व्स में रिटेन करके रखेंगे और उसमें से कितना हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? यस सर। सर इसकी कोई लिमिट भी होती है या फिर कितने भी कर सकते हैं? कितना भी कर सकते हैं, चाहे तो 100% रिटेन भी कर सकते हैं, 100% डिविडेंड भी दे सकते हैं, या बीच की कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। ठीक है? यस सर। We stop over here for today. Anyone having any doubt? No? Okay. Thank you.